पॉइंट गाइस, मेरा एक सवाल आप लोगों से ये था गाइस। 75% पीपल हैव अ फियर ऑफ पब्लिक। फियर ऑफ Yes. पब्लिक का मतलब क्या है कि समटाइम्स यू हैव अ फियर ऑफ मैनेजर, fear of boss, fear of clients, right? You have a hesitation, nervousness, going blank, words are not coming in your mind, right? So, why do you have such kind of fear? अगर मैं इनको सबको घुमा फिरा कर एक नाम दूं, उसको बोलते हैं फियर। वो फियर किसी भी तरीके का हो सकता है, स्पेशली आपके वर्क प्लेस पर जब आप किसी से बात कर रहे हो। fear of senior, fear of junior, fear of those people are very high in terms of your position, right? And sometimes you are going proper presentation, वहां पर fear है। मीटिंग में बोलना है, वहां पर fear है। तो fear of public, कोई बता सकता है why do we have fear of public? Yes, Amrita. In my opinion, I would say whatever I will say, based on my experience, what I felt is that whenever I get fear because of the senior or junior, I don't fear junior actually, but when it comes to senior, a little bit of fear comes to me also, and it is still coming to me. But I would tell you why we have that fear and how I tackled it. We have that fear, whether it can be from your side, if it can be from your junior, it can be from your seniors, or maybe from any person who is in a upper social ladder or in power position. So in my case, I do have fear when it comes to having interaction with the seniors, and also I sometimes face fear while giving presentation also. So it Okay, is very Amrita. normal because we think that We are not talking about it's normal or not normal. We are not talking about if you have a fear when you are giving presentation, whenever someone in front of you who is in a proper power position, right? I just simple question for you. Why do you have this fear? Let me know. There are two types of fear, एक्सटर्नल और इंटरनल। जब आप बॉस के सामने, सीनियर के सामने जब आप बात कर रहे हो, कहीं पर भी सिचुएशन में हो, मीटिंग में डर लग रहा है, प्रेजेंटेशन में डर लग रहा है, इज दिस फियर एक्सटर्नल और इंटरनल? जस्ट it is से always internal. It is इट इज always ऑलवेज internal. इंटरनल। वेट फॉर अ सेकंड, इट इज ऑलवेज इंटरनल। व्हाट अबाउट व्हाट्स योर थॉट, सुमित? इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल? When it come to boss डजंट or मैटर, when सिचुएशन डजंट मैटर। okay, I just want okay to sir. ask, it is internal or external? Say, just think about it and tell me. That fear is internal or external? जब आप डर रहे हो, वो It अंदर is से sir. फियर आ रहा है या कैसे? इंटरनल है वो, एक्सटर्नल है, बाहर से आ रहा है या अंदर से आ रहा Sir, it is already internal. है? इंटरनल। आप बताओ मनीष, क्या वो फियर इंटरनल? Internally, yes. राइट, आप बताओ दानिश। गुड, वेरी नाइस। Sir, external because when we like when we are in front of our boss, then we are fear we fear that time, and when we are in front of a little child, we don't fear in front of him. So it is from external. ओके, योर पॉइंट ऑफ व्यू, योर you are favoring proper in external, right? What about you, Momin? That fear is external or external? I think, sir, external fear External. because Okay, we will discuss about that. Just we are just trying to identify, is it internal or external? We will explain, right? Shahar, what about you? That fear is external or internal? Sir, if I talk about me, so according to me, when we feel and we will see the our junior senior, so we feel in our mind that okay, what people will say and what that people will say about us, those who are standing in front of us. This is the main thing, main root according to me. When we Yeah, man feel root. fear. That is the fear. But I am just asking that whenever someone is front of you, senior or junior, so in that situation, you have a fear. But I am asking, is this fear internal or external? Internal, sir. Internal. Okay. What about you, Busad?
Internal, sir. I think internal. Internal fear है. What about you, Vesh? Is that fear internal or external? Sir, internal. Internal. Let's start. यहाँ पर वोट तो ज्यादा इंटरनल के हो रहे हैं यार. क्या दानिश और मोमिन, आप दो ही लोग हो बस जो एक्सटर्नल बोल रहे हो. Okay, let me give you example, guys. Let's correct it right now. Okay, let's take two scenarios. Okay, one scenario, you have a presentation, you are invited, where you have to share or where you have to give presentation in front of 100 kids. In that particular presentation, you have to speak in front of 100 kids. Number one, first scenario. Second scenario, in your company, 20 investors are coming. You got a call from your office. Okay, you have a presentation. You have to speak by tomorrow in front of 20 investors. So guys, let me know कि कौन सी सिचुएशन में आपको फियर ज्यादा होगा, जब आप 100 बच्चों के सामने बोलने वाले हो या फिर 20 इन्वेस्टर्स के सामने. पहले सिनेरियो में फियर ज्यादा होगा या फिर सेकंड में? बच्चों Second के सामने, scenario. Second. यानी कि जहां पर आप इन्वेस्टर्स के सामने बोलने वाले हो. Yes. बच्चों के सामने नहीं होगा ना उतना जितना No, इन्वेस्टर्स के no. सामने होगा. सो आर यू गेटिंग कि क्यों होगा? अभी आपको आंसर मिल गया सबको. External. अब समझ गए ना फियर क्या है? Yes. Yes, मनीष, sir. Yes. अभी समझे? फियर Yes, कभी भी sir. इंटरनल नहीं होता है, पहले माइंडसेट होना चाहिए. दैट्स द रीजन आई शेयर्ड विद यू प्रॉपरली कि अगर आपको ये चीज पता ही नहीं है तो आप इसी मिथ में हमेशा रहोगे. राइट? माइंडसेट ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको, माइंडसेट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं इसको. एंड माइंडसेट इज एवरीथिंग. अगर आपके माइंड ने कुछ मान लिया है ना तो फिर मान लिया उसने बस. तो इफ यू आर स्ट्रगलिंग गाइस, तो रिमेंबर, आप खुद को बोलना आज के बाद कि दैट फियर इज नॉट इंटरनल. मेरी कोई खता नहीं है उसमें, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट फियर इज कमिंग आउटर प्रॉपर. राइट? एक्सटर्नल, बाहर से आ रहा हो फियर मेरा. मैं भूल रहा हूँ थॉट्स, मुझे डर लग रहा है, फियर हो रहा है, फियर ऑफ जजमेंट है, वो मेरे अंदर नहीं है, वो बाहर से आ रहा है. बच्चों के सामने क्यों नहीं हूँ? क्योंकि बच्चों को तो पता ही नहीं बेचारों को कि जज क्या होती है, जजमेंट क्या होता है ना. उनके सामने तो चौड़े हो गए, उनको उल्टा पुल्टा सीधा जो भी बोलना है बोल दिया. वहां पर तो यू आर स्पीकिंग लाइक अ लीडर. बट मोमेंट यू आर गोइंग इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स, दे विल जज यू. वो आपके बिहेवियर तक जज करेंगे, आपके खड़े होने का तरीका, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका. अब गाइज, क्या ये सच है लोग आपको जज करते हैं? यस और नो में करते देना हैं. जवाब. इस क्लास को Yes. आगे बढ़ाते हैं. डू यू बिलीव के लोग आपको जज करते हैं? Yes. यस. हाथ उठा लो सारे लोग, कितने कह रहे हैं कि लोग आपको जज करते हैं? यस 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 यस. ठीक है. ये जो जज करने वाली बात है ना, ये भी फियर के अंदर ही आती है. फियर ऑफ जजमेंट इसको बोलते हैं. राइट? अब आप एक चीज अंडरस्टैंड करना है यहाँ पर कि हमने ये तो समझ लिया कि फियर हमेशा कहाँ होता है? एक्सटर्नल होता है. कहाँ होता है? एक मैं वैसा एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा ना आप और रिलेट करोगे. एग्जांपल, एक बॉल पर 6 रन चाहिए. एक बॉल पर 6 रन, विराट कोहली खेल रहा है ना. मैच चल रहा है बांग्लादेश और इंडिया के बीच. दिस इज वन सिनेरियो. 1 बॉल 6 रन. राइट? क्राउड आर क्राइंग एंड स्ट्रीमिंग प्रॉपरली. राइट? इन द सेकेंड सिनेरियो, एक तरफ मैच चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, 1 बॉल 6 रन. किस सिचुएशन में विराट कोहली को फियर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा? पाकिस्तान वाला. पाकिस्तान. पाकिस्तान. तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि फियर कहाँ से आता है, एक्सटर्नल है या इंटरनल है. External. गेटिंग गॉट इट प्रॉपरली. तो जब भी आप किसी सिचुएशन को लेकर, फिर चाहे लाइफ हो चाहे फिर कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन के बिना लाइफ कहाँ है भाई? कम्युनिकेशन तो चाहिए ही चाहिए. अमृता, मैं ना अभी ऐसे ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ, एड रन हो रही है प्रॉपर, ऐसे ऐसे प्रोफेशन में सुन रहा हूँ, मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं सुने थे. लेकिन सबको एक ही प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन इज अ स्किल विच यू नीड टू लर्न गाइस, कि वो हर जगह आपको काम आएगी.
वेदर इज योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल। तो हमने यहाँ तक अंडरस्टैंड कर लिया कि जो फियर होता है ना, वो भाई पहले तो इंटरनल नहीं है, आप खुद पर डाउट करना बंद करो, एक्सटर्नल होता है हमेशा। अब वो एक्सटर्नल फियर को गायब कैसे करना है, रिमूव कैसे करना, हाउ यू आर गोइंग टू ओवरकम इट, इट्स अ प्रॉपर लर्नेबल स्किल। ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। कुछ लोग तो इसी उसमें बैठ गए कि ये लर्नेबल नहीं है, ये तो हट ही नहीं सकता। ठीक है, मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ, मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, हमेशा फियर, हमेशा डर, लोग जज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो अब आपको क्या बोलना है कि ये क्या है, लर्नेबल स्किल है। दो तरह के फियर होते हैं गाइस, राइट। एक होता है फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ हाइट। बट एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करता हूँ। कितने लोगों को यहाँ से पानी से डर लगता है? कितने लोग हैं जो जिनको यहाँ पर पानी से डर लगता है? पानी से, पानी वो जब आप देखते हो समुद्र में वो इस तरीके से, रेज योर हैंड मोहम्मद। कितने लोग हैं जिन 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 लोगों को हाइट से डर लगता है? हाइट से, जब भी कहीं पर हाइट पर खड़ा है तो बहुत ऐसे नर्वस हो जाते हो, डर लगता है। हाँ, डर डर सबको लगता है, बट अभी आप कभी हाइट पर खड़े नहीं हुए, पानी में गिरे नहीं हो, अगर गिर जाते तो अपने आप डरते। दैट्स द रीजन यू आर सेइंग। डर तो सबको लगता है। ये जो जिन्होंने हाथ उठाया ना, उन्होंने वो चीज एक्सपीरियंस किया, दैट्स द रीजन दे आर रेजिंग देयर हैंड्स। आप इसलिए नहीं उठा रहे हो। हाँ, माउंटेन पर खड़े कर दिया ना इनको भी, तो टांगे कांपने लग जाएगी। इजंट इट? अमृता, समझ आ रहा है मेरी बात, या ऊपर से जा रहा है सारा? आर यू देयर? आर यू इन द क्लास एट द लेवल ऑफ योर माइंड? सुन रहे हो मेरे को, ध्यान से सुन रहे हो? हाँ, सेशन बोरिंग तो नहीं है, मजा आ रहा है? कैसे मजा आ रहा है, या बंद करें इसको? हम्म, माइंड सेट ऑफ कम्युनिकेशन, माइंड सेट ऑफ लाइफ, हर एक चीज, इट्स माइंड सेट इज एवरीथिंग। तो दो तरह के फियर, बट मेरा सवाल ये है, क्या जिन लोगों को फियर ऑफ हाइट होता है, फियर ऑफ वाटर होता है, क्या सच में उन्हें पानी से डर लगता है? क्या सच में उन्हें हाइट से डर लगता है, या कुछ और वजह है? किस चीज का डर है उनको? मरने का डर। फियर ऑफ डेथ। एग्जाम्पल, आप बोल रहे हो कि मुझे पानी से डर लगता है, देखना पानी, डर लग रहा है क्या? डर लगा? हेलो, पानी, पानी दिखा रहा हूँ, पानी। 78% वाटर इन आवर बॉडी, एंड वी आर सेइंग वी हैव अ फियर ऑफ वाटर। तो आप एक चीज समझो, दो तरह के फियर होते हैं जिनको रियल फियर बोलते हैं प्रॉपर। उसको बोलते हैं फियर ऑफ डेथ। क्या? दो ही तरह के फियर होते हैं, एक फियर ऑफ इमेजिनेशन और एक होता है फियर ऑफ डेथ। दो ही फियर इस धरती पर ना, या तो रियल है या फिर इमेजिनेशन है। तो ये फियर, ये कम्युनिकेशन का माइंड सेट भी आपको क्लियर होना चाहिए कि दो तरह के फियर होते हैं, फियर ऑफ माइंड सेट, फियर ऑफ डेथ, और फियर ऑफ इमेजिनेशन। अब बात करते हैं इमेजिनेशनल फियर की। अब आप ईमानदारी से बताना, बी ऑनेस्ट। अमृता, जब आप प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हो, आपको लग रहा है कि लोग मुझे जज करेंगे, राइट? लोग मेरा मजाक बनाएंगे, राइट? लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, अगर मैं बोल नहीं पाई तो, ये ना हो पाया तो, वो ना हो पाया तो। क्या ये रियल फियर है या ये आपकी एक इमेजिनेशन? इमेजिनेशन। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी गाइस? कितने लोग अग्री है? इमेजिनेशन है या नहीं है? Yes, sir. एंड बिकॉज ऑफ दिस इमेजिनेशन गाइस, ये माइंडसेट अगर आपने कॉन्कर कर लिया ना आज, 99% पीपल आर गेटिंग नर्वस इन फ्रंट ऑफ द पीपल। बिकॉज उनके उनके पास ना ये माइंडसेट है कि अगर मैं, वो पहले ही कर, उस काम को करने से पहले ही सोच रहे हैं कि मैं बोल ना पाया तो मेरे वर्ड्स, या तो उनका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि जहां पर वो नर्वस हुआ, बोल नहीं पाए, तो एक तरीके से फियर माइंड में बैठ चुका है। लेकिन आपको ये माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा, खुद को बोलना पड़ेगा कि इट जस्ट बी अ प्रॉपर कूल काम एंड कंपोज। अरे कुछ नहीं है यार, है ना? ये क्या है? कुछ नहीं, इमेजिनेशन है भाई। कई बार आपने चीजें कर दी होगी, आप सोच रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हुआ कुछ भी नहीं। तो क्या था? इमेजिनेशन थी आपकी। तो दो तरह के क्या होते हैं, फियर Yes. होता है। एक होता है रियल फियर, एक होता है इमेजिनरी फियर। तो आप जब भी इस सिचुएशन में हो, एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इमेजिनेशन और रियल फियर का।
तो आप इसको ओवरकम कैसे करोगे? व्हाट इज द वे ऑफ टू ओवरकमिंग दिस पर्टिकुलर फियर? एग्जाम्पल, देर इज स्नेक इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, राइट? आपके सामने एक स्नेक है, विल यू बी स्केर्ड और नॉट? कितने लोग हैं जो डर जाएंगे अगर उनके सामने सांप आ जाए तो? इसको तो आप किस भी कर सकते हो, यू कैन किस हिम। ये तो इतना क्यूट स्नेक है आपके सामने ना, Sir, राइट? गाइस, जब आप इस सिचुएशन में हो तो डर लगेगा या नहीं लगेगा? क्यों? Because we will die if that snake Fear will of bite us. एब्सोल्युटली, इट्स अ पॉइजनस प्रॉपर्ली, राइट? अगर काट लिया तो चांसेस है कि मर जाएंगे। अभी मैंने क्या बोला कि सांप का डर नहीं है, मरने का डर है। तो ये Hmm. ये फियर क्या है? रियल है। Fear of death. फियर ऑफ डेथ क्या है? फियर ऑफ डेथ। एग्जाम्पल, दूसरी सिचुएशन, देयर इज अ बटरफ्लाई इन फ्रंट ऑफ यू, विल यू बी स्केर्ड और नॉट? क्या डर लगेगा इससे? क्यों? no, sir. बाय? Because Not we it, will not but die because of butterfly. Rather, we will kill butterfly by catching them. हाँ, बट मारना नहीं चाहिए आपको ना। मैं खूब मारी हूँ। हाँ, डू यू रिमेम्बर दोज डेज गाइस? वो ऐसे ना धागा बांध कर उसके पीछे ऐसे उड़ा हाँ करते थे। हाँ Did yes, you? sir. अमृता, तुमने भी किया है? राइट? तो बट वो बहुत मतलब क्या था ना, एक तरीके से बहुत टॉर्चरस था well, उन लोग को है ना, के लिए। अच्छी बात We नहीं थी। killed बाद में वो them. चीज रियलाइज हुई हमको, बट बचपन में कर दी चीजें। लेकिन वो हम करते थे, बटरफ्लाई उड़ाया पर करते थे। I सर वो also तितली caught वो many दूसरा होता था। mosquitoes, put them in the cape inside हाँ, my pen, and then I will check whether they are alive or dead. And if they will die, I will roll them up in the paper and I will just fry them and just And take put it. that paper on the fire. Then I वेरी will tell वेरी my वेरी brother that क्रूअल, वेरी इस क्रूअल मच्छर यू का आर। हम लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया। सो गाइस, आर यू गेटिंग प्रॉपरली? कि जब भी आपको फियर है ना, तो आपको बहुत ही नॉर्मल रहना है कि भाई ये क्या है, आप इसको ओवरकम कैसे करोगे। अभी अपनी कॉपी में एक लाइन बनाओगे, वहां पर लिख दो एक साइड में इमेजिनरी फियर और रियल फियर। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि दिस इज रियल फियर। रियल फियर में क्या आ गया? फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ फायर, फियर ऑफ बिजली का करंट, फियर ऑफ स्नेक। सो ऑल आर रियल फियर। इमेजिनरी जितने भी कम्युनिकेशन के अंदर फियर है, 75% पीपल, गाइज आप इस डेटा को देख सकते हो, 75% लोगों को डर लगता है पब्लिक से। तो आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि वो डर क्या है? इमेजिनरी है। क्या है? Imaginary. इमेजिनरी डर है, राइट? अच्छा, ये माइंडसेट जब मैं आपको दे रहा हूँ, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्लैरिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है? आपको वो हम्म चीजें फील हो रही है या नहीं हो रही कि यार ये चीज तो होती नहीं है कुछ? क्योंकि गाइस, ये चीज एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, इसको एक्सेप्ट करो अपने आप। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, कल आप फिर वही नर्वस फील करोगे मीटिंग के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर, राइट? अब मेरा सवाल आपसे ये है, कितने लोग बिलीव करते हैं मेरी ये बात बताने के बावजूद भी कि पब्लिक स्पीकिंग जो फियर है ना, वो रियल है? क्या सच में? आपको मेरा एक सवाल है आप लोगों से, इज इट रियलिटी के पब्लिक हैव अ फियर ऑफ पब्लिक? के लोगों को डर लगता है पब्लिक से? क्या ये सच है? फियर ऑफ पब्लिक सच है? कितने लोग इसमें बिलीव करते हैं? पेंट తెలుచు एनीवन? एनीवन वुड लव टू शेयर हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू कि फियर ऑफ पब्लिक सच है या झूठ है? क्या सच में पब्लिक स्पीकिंग फियर होता है? कोई बताएगा? no sir, it is not real. नोट? फिर क्या होता है? क्यों नहीं होता? बताओ रीजन वाई। Because sir, in imagination, people make assumption and hypothetical situations where they keep doubting themselves first. अगर लोगों को आई 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 अंडरस्टूड प्रॉपरली वो चीजें जो मैंने बताई ना, कि वो इमेजिनरी है, वो इमेजिनेशन है। अगर लोगों को फियर ऑफ पब्लिक नहीं होता है तो फिर क्या होता है? फिर भी उसके बावजूद भी लोग डरते हैं, फियर आता है, क्यों? वाई? Fear Because sir, object. they want to become a state high prestige person, or they can protect their image in front of people. ये They want.
ये तालियां, let's have a hand for Sumit, ladies and gentlemen. The word he mentioned, image. Guys, Prestige. remember one thing, you don't have a fear of public, fear of boss, fear of seniors or juniors. You don't have such kind of fear. You have only one fear, that is called Prestige, sir. fear Izzat. of image. Izzat. Why? Let me give you example. आप अपने घर पर देखना कि जब चाय पीते हैं ना, तो अगर कप टूट भी गया ना, वी आर टेकिंग टी इन अ ब्रोकन कप। चल रहा है, काम चल रहा है, टूटे हुए कप में भी चाय पी रहा है। बट मोमेंट गेस्ट एट योर होम, वॉट यू विल डू? मम्मी बोलती है नए कप निकाल कर लाओ, वॉट यू आर डूइंग देयर? यू आर शोइंग योर इमेज, इजंट इट? क्या दिखा रहे हो वहां पर? यू आर शोइंग योर इमेज Image. कि दिस इज आवर इमेज। सिमिलरली, जब भी आप बॉस के सामने मीटिंग में वो चीजें आपको डर आ रहा है, वो उनका डर नहीं है, बिकॉज यू आर कंसर्न अबाउट योर इमेज। मनीष की एक इमेज एज अ पर्सन। एंड गाइज, नंबर वन प्रॉब्लम एज अ ह्यूमन बीइंग, अनदर पीसीज डजंट हैव दिस पर्टिकुलर थिंग। कुत्ते को देखोगे आप, कहीं पर पोटी कर देगा, कहीं पर सुसु कर देगा, isn't it? Because he doesn't have a image. We can't, because we have a image. Getting it, guys? Yes. हाँ, ये क्लास जो है ना भाई, 12,000 रुपए की है अकेली, जो मैं आपको बता रहा हूँ। 12,000 की, 75,000 की बोलूंगा। 75% लोगों को फियर है। तो इफ यू आर इन दिस क्लास, आज के बाद ये फियर नहीं होना चाहिए आपको। सच्ची। आपने कभी सोची थी ये बात कि फियर ऑफ पब्लिक होता ही कुछ नहीं है? आप डर रहे हो काम का। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, सी। आप थोड़ा सा देखना कि हाउ आई कैन ग्रैब द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। जब आप ऐसे माइंड सेट के साथ जाते हो ना, बिकॉज इट्स लर्नेबल स्किल। व्हाट इज इट? इट्स अ प्रॉपर लर्नेबल स्किल। जब आप इस माइंड सेट के साथ जाते हो, बोलते हो, तो वो जो फियर ऑफ इमेज है ना, वो खत्म हो जाती है आप। राइट? वाई? बिकॉज यू हैव अ क्लियर माइंड सेट वाइल स्पीकिंग। I am sitting among the professionals. All are professional. Watch this video. I'm Suman. I'm a public speaking coach. I remember I the saw year this one. 2021 when I started my communication and public speaking journey as a student of communication skills. It was very difficult for me to adopt LinkedIn and create videos in social media platforms. Soon I belong to Village, Bhogre ki Sahara. I struggled there. I criticized a lot, but not 3 years. I have grown by 200%. This one thing I feel like for public speaking has Hi, changed Kicho. my personal and professional life. And today I'm helping others how they can speak confidently in any condition or in any situation. Can you see this? It's a mindset. What is happening with you? कि जब भी किसी ऐसी सिचुएशन में जा रहे हो, इंट्रोडक्शन तक नहीं दे पाते हो। राइट? इंट्रोडक्शन, you have a proper degrees, experience, but when it comes to expressing that particular experience, you are hesitate. Why? You have a fear. तो आज आपको गाइज ये प्रॉपर प्रॉपर एक्सेप्ट करना है कि देर इज नो फियर। फियर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। इट्स जस्ट अ इमेज फियर। आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट माई इमेज। इमेज को भी मैं लेकर क्यों हूं? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आपको डरना ही नहीं है। क्या हो जाएगा? गाली दे देगा, हंस देगा मेरे ऊपर। राइट? स्नेक काटेगा तो मर जाऊंगा, हंसेगा तो मर जाऊंगा क्या? कुछ कोई मेरे ऊपर हंसेगा, मेरे को मार देगा क्या? जान से मार देगा क्या? नहीं, कुछ नहीं होगा। क्यों डर रहे हो? तो जब आपके पास, व्हेन यू हैव सच काइंड ऑफ माइंड सेट, व्हेन यू आर स्पीकिंग, फियर पास तक नहीं आएगा भाई। बट यू नीड टू एक्सेप्ट दिस थिंग। सो गाइस, यहाँ पर हमने 2-3 चीजें प्रॉपर अभी
कवर की है। नंबर वन, शुरुआत यहाँ से हुई थी कि 75% पीपल हैव अ फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ सीनियर्स, जूनियर्स, सिचुएशन एंड कंडीशन। बट हमने क्या जाना, यहाँ पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी कि फियर जो है ना वो क्या होता है, इंटरनल। इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं। हमेशा याद रखना कि हमेशा जब फियर आपको आ रहा है वो एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से आ रहा है, ओनली सिचुएशन। फियर हमेशा सिचुएशनल होता है, इंटरनल नहीं होता है। आपको खुद के ऊपर डाउट नहीं करना है। एक ये चीज क्लियर की। दूसरा हमने क्लियर किया कि दो तरह के फियर होते हैं, रियल और इमेजिनरी। रियल फियर इज फियर ऑफ डेथ। सेकंड फियर, फियर ऑफ इमेजिनेशन। जब भी आप डर रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, हेजिटेट कर रहे हो, वर्ड्स नहीं आ रहे, ब्लैंक जा रहे हो, ओनली वन रीजन, यू आर बिजी इन इमेजिनेशन। यहां पर आओ, आप इमेजिनेशन में बिजी हो, सो इट्स इमेजिनरी। नाउ द क्वेश्चन इज के इमेजिनेशन इज द ओनली प्रॉब्लम, इमेज इज द ओनली प्रॉब्लम, देयर इज नो फियर ऑफ पब्लिक। कोई फियर ऑफ पब्लिक नहीं होता, ओनली इमेज फियर होता है आपको। वी ऑलवेज शो आवर इमेज एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट अदर स्पीसीज ऑन दिस प्लेनेट। वी आर द ओनली ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लेनेट दोज हु हैव अ इमेज। और किसी जानवर या स्पीसीज के पास कोई इमेज नहीं होती अपार्ट फ्रॉम अस एज अ ह्यूमन बीइंग, राइट। अब उस इमेज को कैसे कवर करना है, जब आपके पास आप इस चीज को एक्सेप्ट करोगे कि क्या हो जाएगा अगर नहीं फेस हो द पाएगा, रियलिटी। है ना। बट इसका भी सोल्यूशन ये नहीं है कि क्या हो जाएगा सलमान, मैं तो फिर भी नर्वस हूंगा, मैं तो फिर भी बोल नहीं पाऊंगा, ये तो फिर भी हूंगा। मेरा इस सेशन का सिर्फ पर्पज ये है, द पर्पज ऑफ दिस सेशन के पहले ना आप ये चीज एक्सेप्ट कर लो जो मैंने आपको बताया। अब वो बोलने का जो तरीका है, बोलना कैसे है, वो बाद की चीज है। पहले आप प्रॉपर प्रिपेयर होने चाहिए। उसके लिए भी प्रॉपर टेक्निक्स एंड मेथड्स आर अवेलेबल इन आवर ट्रेनिंग विच वी विल डिस्कस अबाउट इन द नेक्स्ट सेशन। वी विल डिस्कस अबाउट कि जब आपने अपना प्रॉपर माइंडसेट बना लिया कि आई हैव अ प्रॉपर माइंडसेट, देयर इज नो फियर ऑफ पब्लिक, आई हैव जस्ट फियर ऑफ इमेज, एंड इसको खत्म करने के दो तरीके, आई जस्ट नीड टू चेक प्रॉपरली कि स्नेक है या फिर बटरफ्लाई है मेरे सामने। लेकिन गाइस रिमेंबर वन थिंग, आपकी लाइफ में कुछ स्नेक भी होंगे जो अपनी जुबान से ना पॉइजन उगलता है। ओनली स्नेक ही पॉइजन नहीं उगलता इस धरती पर, ऐसे कुछ इंसान भी है आपकी लाइफ में जो हमेशा आपको क्या बैठे हैं, है ना। हमेशा ऐसे लोग हैं जो से ना वेन एवर दे, Criticize you. हाँ, दे आर क्रिटिसाइज यू। नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन, रिमेंबर वन थिंग, अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर फैक्ट। हमेशा आपको लाइफ में ना, फिर चाहे आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, कहीं पर आप किसी प्लेस पर हो या लाइफ में हो, दिस इज द फंडा ऑफ लाइफ। 80% लोग ऐसे हैं जो आपके फेवर में होंगे, 20% लोग ऐसे होंगे जो आपके फेवर में नहीं होंगे। ऐसे ही पब्लिक स्पीकिंग में होता है, 20% लोग ऐसे होते हैं हमेशा जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, राइट, जज करेंगे। सो द सिंपल वे यार, 80%